MD Cat Learning Hub. Like, share, subscribe, and comment. Assalamu alaikum everyone, welcome to my YouTube channel, the MDCAT Learning Hub. As promised in the previous video, I am going to make a video upon cell membrane. After the cell wall, it is from unit number 1, Cell Structure and Function, class 11, Biology. As we know that cell membrane is a component of cell. After cell wall, like inside cell wall, there is present cell membrane, while animal cell lacks cell wall, so their outermost boundary is cell membrane. First of all, we will talk about other names of cell membrane. Cell membrane is also called as plasma membrane. Second name of cell membrane is also called as plasmolemma. And the third name of cell membrane is also called as cell surface membrane. Cell surface membrane, like it is present on the surface. It is also called as sarcolemma. Sarcolemma is like muscle cell membrane. We call the cell membrane of muscle cell as sarcolemma, and neurolemma, cell membrane of nerve cell. So what is called as nerve cell membrane? Neurolemma is the nerve cell membrane. On the other hand, cell membrane is also the most important component of cell. It is living, it is thin and flexible. Now the most important part, like it is the outermost boundary in animal cell. As animal cell lacks cell wall, so the outermost boundary will be made up of cell membrane. Second point हमारे पास composition का आ जाएगा, like cell membrane is made up of protein 60 to 80% and lipids 20 to 40%. इन दोनों के मिक्सचर से हमारे पास cell membrane बनेगा. थर्ड पॉइंट, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल. डेविड रॉबर्टसन ने 1959 में हमारे पास इसको प्रपोज किया था. लिपिड बायलेयर इज सैंडविच्ड बिटवीन टू प्रोटीन लेयर्स. आई एम मेकिंग अ रफ डायग्राम. जो हमारे पास ये टेल्स वाले इनसाइड पार्ट है, इनको हम लोग हाइड्रोफोबिक कहेंगे. ये नॉन पोलर होंगे और ये टेल्स कहलाएंगी. और जो अबव हमारे पास पार्ट है, इट इज़ कॉल्ड एज हाइड्रोफिलिक, और ये हमारे पास हेड रीजन होगा और ये हमारे पास पोलर होगा. पोलर आर द सब्सटेंसेस दैट आर लाइक मिसिबल इन वाटर. हाइड्रोफोबिक में फोबिक वर्ड हमारे पास फोबिया से निकला है. फोबिया मीन्स फियर. वाइल हाइड्रोफिलिक में हमारे पास फिलिक फीलिया से निकला है, विच मीन्स लव. लव फॉर वाटर, फियर फॉर वाटर. अब एक तो हमारे पास यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल हो गया. अब जो नेक्स्ट मॉडल है दैट इज कॉल्ड एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. ये दोनों मॉडल्स हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के ऊपर स्ट्रक्चर किए गए हैं. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो फेडरल बोर्ड की बुक पे भी गिवन है. इट वॉज प्रपोज बाय सिंगर एंड निकल्सन इन 1972. इसकी मेन जो हमारे पास पॉइंट है दैट इज आइसबर्ग्स आर फ्लोटिंग इन ओशन. इधर ओशन से मुराद हमारे पास फॉस्फोलिपिड है, जबकि आइसबर्ग्स हम लोगों ने इससे मुराद हमारे पास प्रोटीन्स हैं. प्रोटीन्स आर फ्लोटिंग इन फॉस्फोलिपिड्स. लाइक हमारे पास ये बाइलेयर बनी हुई है, इसमें हमारे पास प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बीच में इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होंगी, और साथ हमारे पास ये फॉस्फोलिपिड्स हेड्स एंड टेल्स होंगे. जो हमारे पास इनसाइड पार्ट होगा दैट इज़ हाइड्रोफोबिक, और जो आउटसाइड होगा दैट इज़ हाइड्रोफिलिक, जस्ट लाइक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल. अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास लिपिड्स का आ जाता है. लाइक सेल मेम्ब्रेन में हमारे पास लिपिड्स क्या होंगे? लिपिड्स हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स होंगे जो कि एम्फीपैथेटिक होंगे. एम्फी मीन्स टू. Like they will have two regions. One region will be hydrophilic and the other will be hydrophobic. Hydrophilic part will make the head region that will be present outside, and the hydrophobic part will make the tail region that will be present inside. Now, fluidity and flexibility of cell membrane is directly proportional to the number of unsaturated fatty acids. The more the number of unsaturated fatty acid present in the cell membrane, the more fluid and flexible the cell membrane would be. It is also directly proportional to the functional activity of cell membrane. So as far as unsaturated fatty acids is concerned, it will also affect the functional activity of cell membrane. The next point is cholesterol. Cholesterol के हमारे पास जो functions होंगे that is listed below. सबसे पहला function is stability to cell membrane. It gives stability to cell membrane. Number 2 is stiffness, and number 3 is restrict ions and polar molecules. Now the next part would be of carbohydrates. Carbohydrates are not formed in pure form in cell membrane. They can either combine with proteins to form glycoproteins or lipids to form glycolipids. Glycoproteins and glycolipids both are conjugated molecules that will form glycocalyx. Glycocalyx is an outer covering formed outside cell membrane. और glycolipids जो होंगे हमारे पास that would be act as cell surface markers. Cell surface marker means they will help in cell to cell recognition. For example, हमारे पास एक टिश्यू बन रहा है, तो उस टिश्यू में जो हमारे पास सेल ऐड होंगे एक टिश्यू बनाने के लिए, तो करेक्ट सेल की अटैचमेंट के लिए हमारे पास ग्लाइकोलिपिड सेल सरफेस मार्कर्स का काम करेंगे. अब द नेक्स्ट पॉइंट वुड बी ऑफ फंक्शन. सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है हमारे पास?
फंक्शन हमारे पास सेल मेम्ब्रेन का हम लोगों ने सेल वॉल वाले टॉपिक में भी डिस्कस किया था, बट इधर हम लोग अलग से कर लेते हैं। लाइक फंक्शन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको हम लोग कभी भी नहीं कहेंगे। सेल मेम्ब्रेन इज़ नॉट सेमी परमिएबल, नेवर यूज दिस वर्ड फॉर सेल मेम्ब्रेन। Either use selectively permeable or differentially permeable. Only use these words based on gradient or based on nature. ठीक है। सेमी परमिएबल हम लोग इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि ये सब छोटे मॉलिक्यूल्स को ये अपने अंदर पास इन नहीं करता और ना ही पास आउट करता है। ये सिर्फ सेलेक्टिव और डिफरेंशियली परमिएबल है। लाइक कुछ कुछ चीज़ों को ये पास इन करता है और कुछ कुछ चीज़ों को ही पास आउट भी करता है। ठीक हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट वुड बी ऑफ रेगुलेशन। रेगुलेशन मीन्स कि इसके और क्या क्या काम है। ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स, नंबर 2 एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट्स, नंबर 3 मेंटेन पीएच, सिक्रीट यूजफुल प्रोडक्ट्स। यूजफुल प्रोडक्ट्स हमारे पास हार्मोन्स भी हो सकते हैं, एंजाइम्स भी, ये दोनों हमारे पास प्रोटीन्स होंगी। और लास्ट पॉइंट इज मेंटेन आयनिक एनवायरनमेंट, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। आयनिक एनवायरनमेंट लाइक सूटेबल एनवायरनमेंट फॉर सेल टू डू वेरियस एक्टिविटीज़। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हम लोगों ने एक रफ से स्ट्रक्चर बनाया है। साइटोप्लाज्म एक ऐसा कंपोनेंट है दैट इज़ कॉमन इन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। ठीक है, ये हमारे पास यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होगा और प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होगा। और प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में हमारे पास 90% वाटर प्रेजेंट होता है इन साइटोप्लाज्म, दैट इज़ कॉल्ड एज सोल्यूशन। अब सोल्यूशन में हमारे पास एक तो स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, न्यूक्लियोटाइड्स, अमाइनो एसिड्स, ये सारे जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे दैट विल मेक ट्रू सोल्यूशन, जो कि लेस विस्कस होगी। और जो हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे, फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स, दैट विल मेक कोलाइडल सोल्यूशन, जो कि मोर विस्कस होगी। अब एक रफ सा स्ट्रक्चर हम लोगों ने साइटोप्लाज्म का बनाया है। लाइक इन सेल, फॉर एग्जांपल ये बाउंड्री हम लोगों ने सेल कंसीडर की है, तो इसका जो सेंट्रल रीजन होगा दैट इज़ कॉल्ड एज साइटोसोल, जो कि लेस कोलाइडल होगा और मोर ट्रू सोल्यूशन उसमें होगी। लेकिन जो पेरिफेरल रीजन होगा, ऑन पेरिफेरी मीन्स बाउंड्री, उसको साइटोजेल कहेंगे, जो कि मोर विस्कस होगा और इसमें मोर कोलाइडल और लेस ट्रू सोल्यूशन होगी। अब फंक्शन में हमारे पास साइटोसोल मेटाबॉलिज्म का काम करता है, जबकि मेटाबॉलिज्म फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलिसिस और प्रोटीन सिंथेसिस। ग्लाइकोलिसिस हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जाके पढ़ेंगे। लाइक ग्लाइकोलिसिस इज़ द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, या आगे हम लोग रेस्पिरेटरी चेन में पढ़ेंगे। और साइटोजेल का हमारे पास काम होगा स्टोरेज। स्टोरेज हम लोग यूज़फुल सब्सटेंस की भी होगी और यूज़लेस मीन्स वेस्ट मटेरियल की भी स्टोरेज का काम साइटोजेल ही करेगा। सो ओवरऑल हमारे पास साइटोप्लाज्म का फंक्शन हो गया मेटाबॉलिज्म एंड स्टोरेज। ठीक हो गया। सेल के कंपोनेंट्स हमारे पास तीनों डिस्कस हो गए हैं, दैट इज़ सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म। अब हम लोग सेल के अंदर वाले कंटेंट में जो कि ऑर्गेनल्स इंक्लूड होंगे वो भी हम लोग कवर कर लेंगे। अब ये हमारे पास ओवरऑल रिव्यू आ जाएगा, आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। हमारे पास 2 टॉपिक्स कवर हुए हैं, सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म। तो नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनल्स लिस्ट बाय लिस्ट हमारे पास कवर होते जाएंगे। उसके बाद हम लोग फिज़िक्स और केमिस्ट्री की तरफ भी आएंगे। अब हम लोग एक डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारे पास पेज नंबर, ये मैंने अटैच कर दिया, आप इधर से भी बेशक कर लें। ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन की डायग्राम है। अब हम लोग 5 MCQs करेंगे ऑफ दिस टॉपिक। फर्स्ट वन इज़ द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज़, ये AJK 2019 के पेपर में आया था। नंबर A, प्रोटीन लेयर्स हैविंग स्कैटर्ड फॉस्फोलिपिड्स, नो इट इज़ फॉल्स। नंबर B, फॉस्फोलिपिड बायलेयर इज़ इनक्लोज्ड इन प्रोटीन लेयर, येस इट इज़ ट्रू, क्योंकि हमारे पास प्रोटीन लेयर के दरमियान में ही फॉस्फोलिपिड बायलेयर सैंडविच होती है। नेक्स्ट इज सेल परमिएबिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट प्रोसेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन डिपेंड अपॉन, ये NTS 2019 में आया था, फॉस्फोलिपिड कंपोनेंट। ये आगे हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि फॉस्फोलिपिड इज मोइन कंपोनेंट विच कंट्रोल्स द फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। Why it is said that plasma membrane is asymmetrical, ये NUMS 2022 में हमारे पास MCQ आया था। The two surfaces and halves are not identical, ये as it is line फेडरल बोर्ड की टेक्स्ट बुक में हमारे पास रिटर्न है। You can also do reading from that textbook. Next MCQ, the dash part of plasma membrane controls the fluidity of the membrane, ये हमारे पास NUMS 2022 में आया था। That's it for today. Allah Hafiz.